Okay, so Rahul, let's proceed ahead with your HR snap for EESL, right? Okay, so very brief introduction from your side, Rahul. Good evening, sir. My name is Rahul Verma. I have done my BTech from IC College of Engineering and Technology in 2016 from Greater Noida, and I am basically from Lucknow, which is capital of Uttar Pradesh. And after that, after 2016, I worked in IT industry for 2 years, approx 2 years, and thereafter I started preparing for GATE and PSU exams. And and currently I'm pursuing MTech in IT Roper in computer science branch. And coming to my family background, we family members, we are 4 members. My father, who is a government employee, retired government employee. My mother, who is a housewife, and my elder brother. And we live in Lucknow only. And that's all about me, sir. Okay, so Rahul, why you left IT sector, IT industry? Sir, to pursue my ambition to do to work in PSUs and public sector especially. So that's why I left IT industry and to work in that But normally, atmosphere. jobs in public sector are less in computer science engineering. Yes, sir. Why Yes, you sir. took computer science in the beginning? Sir, actually, it was my interest. Basically, from very early age, I developed very keen interest towards computer science. So I Okay, so Rahul, I was asking you, did you try for NIC, National Informatics Center? Yes, sir, I tried for that, but unfortunately, I didn't made it to it. So So with what I, purpose you are doing your MTech now? sir, I actually I wanted to go to PSUs only or government job, but due to this pandemic and all things going on, so I have to take admission in a college. So I took it in IT Which Roper. semester you are presently? So currently my first semester will be beginning from now. So, but if you got selected in EESL, Yes, how sir. shall you do your MTech? Sir, I will try to if the organization allows me, I will try to take extension and try to do my masters if because it will help me and as well my organization also in future. But But if you don't know that EESL will induct you in which domain. sir, but the requirement which were needed for the job which was mentioned in the advertisement, so that experience I had in my job for 2 years which I had. So that is the thing. And if I will do MTech, it will be beneficial for me and the organization also in that way. So if the organization doesn't want, I will leave my MTech. अच्छा, आपने EESL में वर्क एरियाज देखा है, कौन कौन से एरिया में यू आर टू वर्क इन EESL? सर ESL वर्क तो उसमें बहुत सारे डोमेन्स में वर्क करती है, जैसे उजाला, SLNP। नहीं, ये तो उसके प्रोडक्ट हैं। एज हाँ कंप्यूटर इंजीनियर आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर मैं जो उनका बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, आई एम श्योर ESL का, वो मैं संभाल सकता हूँ, डेटाबेस ऑफ आवर क्लाइंट्स। एंड जो भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं या कुछ भी जो टेक्निकल चीज़ों में जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मैं वो अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ कंपनी में। एंड इफ सम टेक्निकल related project has came to our company, I can very well contribute to that in by So applying expertise. what do you know about an efficient energy? So energy efficiency means that how we are using the energy which we are getting in a very efficient manner. Long back years, we used incandescent bulbs, which took so much watt, and it gives us, I think, 10 or 15 lumens. But right now, the 10 watt LED bulb also is giving us 75 to 80 lumens of energy. So in that way, we have optimized our energy So to as get. कंप्यूटर इंजीनियर आप एनर्जी एफिशिएंसी में क्या कर सकते हैं?
Sir, I can manage all the technical works which will be there. I'm sure, whichever the digital work that like जैसे ESL की साइट जो वेबसाइट भी है वो भी कोई ना कोई मैनेज कर रहा होगा. So I can अच्छा, contribute. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप क्या जानते हैं? So Internet of Things is a technology, is a smart technology how we use our smart appliances, which will which will be beneficial for our ecosystem, and it will also optimize. It will efficiently save our energy which we are getting. आप IoT के बेस पे स्मार्ट बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? स्मार्ट ऑफिस स्पेस लेटर से. स्मार्ट ऑफिस सर हम स्मार्ट ऑफिस उस सेंस बना सकते हैं हम वहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंट्स हमारे एसी होंगे, अप्लायंसेस जितने भी अप्लायंसेस होंगे वहाँ पे उनको हम IoT से कनेक्ट मतलब स्मार्ट अप्लायंसेस बना सकते हैं जिसके थ्रू हम कभी अगर पावर आउटेज हुआ या हम लोग कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा या कुछ वैसी चीज हुई तो वी कैन पुट देम ऑफ बाय टैपिंग अ सिंगल बटन ऑन आवर मोबाइल फोन एंड इट विल बी शट ऑफ. So it will conserve our energy which was earlier being used. Okay, Rahul, let me give you the feedback. Yes, See, sir. as of now for EESL ना बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग EESL के इंटरव्यू में आपके साथ compete करेंगे. तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको नॉलेज एक्वायर करना है. MTech का तो आप एक्सटेंशन की बात मत करना MTech में. अच्छा. डोंट आस्क फॉर एक्सटेंशन क्योंकि वो कभी नहीं मिलती है आपको और ना आपको करनी चाहिए. ठीक है सर. श्योर. ओके सर. डोंट आस्क फॉर दैट. वो गलत हो जाएगा. आप बोलना कि सर अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो आई हैव नॉट स्टार्टेड, आई जस्ट स्टार्टेड तो आई कैन लीव माय मास्टर्स बिकॉज MTech मैंने इसलिए कर रहा था कि अगर फॉल बैक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए. एज ऑफ नाउ आई नीड जॉब एंड EESL इज वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. सर बट अगर वो कहेंगे आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए तो जॉब तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर वो. नहीं, लेकिन आपने बोला ना मैं पब्लिक सेक्टर की जॉब जाना चाहता हूँ. यस सर. हर कोई जॉब में नहीं जाओगे ना आप. आपको ये अब मास्टर्स करने के टाइम पे भी आपने पब्लिक सेक्टर का एग्जाम लिखने थे. यस सर. ट्राई टू एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर, तो आपने पहले बोल दिया. यस सर. फिर मास्टर जो है वो आपका नॉलेज एनहांस करेगा. अगर आपको जॉब नहीं मिला, अगर जॉब मिल गया तो आप वहां सीखोगे. यस सर. EESL का वेबसाइट ढंग से पढ़ो सारा और ओके उसको सर. देखो एज कंप्यूटर इंजीनियर आप कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. they are talking about e-mobility and all these things. They are talking about many things actually. उसको डिटेल में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा एज कंप्यूटर इंजीनियर आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो. और उसको पढ़ो ढंग से और लिखो उसको कि मेरे को ये कंट्रीब्यूशन करना है. ठीक है. पुरानी जॉब आपने क्यों छोड़ दी, उसमें आपकी क्या लर्निंग थी? पिछला कितने साल जॉब की आपने पुरानी? सर अप्रॉक्स 2 years, 20 months एग्जैक्ट. तो जो 2 साल आपने जॉब किया उसमें आपकी लर्निंग क्या थी? फिर आपने उसको छोड़ क्यों दिया? और अगर आप EESL आते हैं तो आप क्या किस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ये 2-3 चीजों का आंसर आपको करना है, राइट? सर ये चीज बोल सकते हैं सर कि जैसे मैं वेब डेवलपर था वहाँ पे कंपनी में, तो आई कैन कंट्रीब्यूट एज अ वेब डेवलपर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. वेब डेवलपिंग बहुत छोटी चीज है. वो उसके लिए आपको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं. वो उसके लिए वेब डेवलपर होते हैं. सर ये चीज ना बोलूं. हाँ, नहीं वो नहीं बोलना है. जो उन्होंने लिखा है ना उसमें नोटिफिकेशन में कि इस डोमेन के लिए हमें लोग चाहिए, वो बोलो. सर बट वहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी, वी नीड प्रेफरेबली अ पर्सन हु हैज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन PHP, MySQL, C++ एंड ट्रबल शूट, एंड आफ्टर दैट इट वाज. ये तो टूल्स है ना, टेक्निक्स हैं. ये तो सब जगह यूज होती हैं. बिल्कुल सर. ये तो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड एवरीवेयर एक्चुअली. तो वही तुम उस डायरेक्शन में बोलो कि इनके बेस ये नॉलेज मेरे को होना चाहिए, इसके बेस पे मेरे को कुछ क्या एक्टिविटी करना है वो थोड़ा देखो, राइट? और भी चीजें देखो उनकी वेबसाइट से, आपको आइडिया मिलेगा. बिल्कुल सर. तो किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो वो थोड़ा सा राहुल देखो. और थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है सर इंट्रोडक्शन में सर कि बाद में जो आप पूछ रहे हैं उसको. ओवरऑल अच्छा सर. ओवरऑल जिन लोगों के साथ अभी आपको मैं बाकी वीडियोस भी हम लोग डालते हैं ना जैसे हाँ सर. हाँ तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस, राइट? यस सर. डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एक मैच्योरिटी वो एक्सपेक्ट करेंगे प्रेजेंट. सर मेरा जेस्चर मतलब सही लग रहा था कि सर मतलब थोड़ा जेस्चर नहीं, इनफॉर्मल. जेस्चर ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लग रहे हो. अच्छा सर, वो ड्यू टू नर्वसनेस नर्वसनेस और जो भी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. बिकॉज जब आप पूछते हैं तो मैं ये थॉट करता हूँ कि आप सामने कंपनी बैठी तो वो थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है कोई सर. बात नहीं, तो वहां पे तो और भी ज्यादा होंगे ना, 2-3 लोग होंगे वहाँ. हाँ सर. वो चीज नहीं होनी चाहिए. अभी उसकी प्रैक्टिस करो सो दैट आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाए, राइट?
बिल्कुल सर। प्रॉपर जेस्चर पोस्चर और मोबाइल को टिका के तो फिर अकॉर्डिंगली जेस्चर पोस्चर के साथ ऐसा करो। ओके सर, श्योर। ठीक राहुल, ओके सर, ओके प्रैक्टिस वेल फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।